Hello friends, welcome to my channel English with its baby life. Today I am going to discuss 45 daily use sentences with you guys. So let's start with the video. सिर्फ यही कारण है कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं. This is the only reason that she has so many friends. This is the only reason that she has so many friends. तुम थोड़ी देर अपने रूम में आराम क्यों नहीं कर लेते? Why don't you repose in your room for a while? Why don't you repose in your room for a while? Next is जब तक मैं घर पहुंची मेरे रिश्तेदार जा चुके थे. By the time I reached home, my relatives had gone. By the time I reached home, my relatives had gone. Next is उसकी लापरवाही ही उसके एक्सीडेंट का निश्चित कारण थी. His carelessness was a one-way ticket to the accident. His carelessness was a one-way ticket to the accident. मैं वहाँ सिर्फ उसके ज़िद करने पर गई थी. I went there at his instance only. I went there at his instance only. Next is मैं तुम्हारे ज़िद करने पर तुम्हें सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकती. I can't buy you everything at your instance. I can't buy you everything at your instance. Instance means request. मेरी बेटी के हाथ से आईना छूट गया. My daughter lost hold of the mirror. My daughter lost hold of the mirror. कांच के कुछ टुकड़े उसके पैरों में चुभ गए. A few glass splinters pricked into her feet. A few glass splinters pricked into her feet. Prick means चुभना. उसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा था. She was bleeding profusely or she was bleeding a lot. She was bleeding profusely or she was bleeding a lot. Next is अगर वो भूखी रहेगी तो वो रोएगी. छोटे बच्चे के लिए बोल सकते हैं. If she remains hungry, she will cry. If she remains hungry, she will cry. Next is तुम लोग एक दूसरे को लगातार चिढ़ाते या छेड़ते क्यों रहते हो? Why do you keep ragging on each other constantly? Why do you keep ragging on each other constantly? यहाँ पे you plural है. Okay? Next is इस संसार में कोई भी खुद का फ़ायदा देखे बिना दूसरों की मदद नहीं करता. No one helps others in this world without seeing their own benefit. No one helps others in this world without seeing their own benefit. Next is सिया और मैं एक दूसरे के काम के बारे में बहुत कम जानते हैं. सिया एंड आई नो वेरी लिटिल अबाउट ईच अदर्स वर्क. सिया एंड आई नो वेरी लिटिल अबाउट ईच अदर्स वर्क. नेक्स्ट इज मौन आधी स्वीकृति है. साइलेंस गिव्स कंसेंट. साइलेंस गिव्स कंसेंट. कंसेंट मीन्स स्वीकृति. मुझे लगता है ये किसी और का कोट है. I think this is somebody else's coat. I think this is somebody else's coat. Next is क्या तुम्हें वहाँ अच्छा खाना खाने को मिलता है? Do you get to eat good food there? Do you get to eat good food there? Next is दर्द आज शाम तक कम हो जाना चाहिए. The pain should ease by this evening. The pain should ease by this evening. Ease means कम होना, उसका असर. दांत का दर्द कम करने के लिए मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए? Which medicine should I take to ease the toothache? Which medicine should I take to ease the toothache? Ease means कम करना. Next is मेरा उस पर से भरोसा उठ गया है. I have lost faith in him. I have lost faith in him. Next is 500 मीटर की रेस तो मैं यूं या फिर आसानी से जीत सकता हूँ. I can win 500 meter race with ease. I can win 500 meter race with ease. Ease means आसानी से. मैंने क्लास में ये टॉपिक करवा दिया है. इसको आप बोल सकते हैं I have covered this topic in the class. I have covered this topic in the class or I have taught this topic in the class. Next is तुम ज़रूरत से ज़्यादा क्यों बोलते हो? Why do you speak more than necessary? Why do you speak more than necessary? More than necessary means ज़रूरत से ज़्यादा. Next is
कल रात तुमने उसे ज़रूरत से ज़्यादा सुना दिया या फिर डांट दिया. You scolded her more than necessary last night. You scolded her more than necessary last night. Or you gave her earful more than necessary. जल्दबाजी में मैंने उसे उल्टी टी शर्ट पहना दी. जब अंदर की टी शर्ट बाहर होती तब उसे बोलते हैं इनसाइड आउट. आई पुट हर टी शर्ट ऑन इनसाइड आउट इन हेस्ट. आई पुट हर टी शर्ट ऑन इनसाइड आउट इन हेस्ट. तुमने टी शर्ट उल्टी पहन रखी है. जब पीछे की टी शर्ट आगे आती तब आप बोल सकते हैं यू आर वेयरिंग टी शर्ट बैक टू फ्रंट, और यू आर वेयरिंग टी शर्ट रॉन्ग वे राउंड, या फिर यू आर वेयरिंग टी शर्ट बैकवर्ड्स. सो बैकवर्ड्स, बैक टू फ्रंट और रॉन्ग वे राउंड. ओके, नेक्स्ट वी हैव अपनी टी शर्ट घुमाकर सीधी कर लो. टर्न और फ्लिप योर टी शर्ट राइट वे राउंड. टर्न और फ्लिप योर टी शर्ट राइट वे राउंड. नेक्स्ट इज तुम्हारी दाल यहाँ कभी नहीं गलेगी. मीन्स तुम्हारी तरकीबें यहाँ सफल नहीं होंगी. यू विल नेवर अचीव योर एंड्स हियर, और योर ट्रिक्स विल नेवर सक्सीड हियर, और योर स्कीम्स वोंट वर्क हियर. नेक्स्ट इज मुझे आज डॉक्टर से मिलना है. आई हैव टू सी द डॉक्टर टुडे, और आई हैव टू मीट द डॉक्टर टुडे. यहाँ पे सी का मतलब है मीट. नेक्स्ट इज समझदारी इसी में है कि तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ. द वाइजेस्ट और स्मार्टेस्ट कोर्स इज दैट यू लीव फ्रॉम हियर राइट नाउ. द वाइजेस्ट कोर्स इज दैट यू लीव फ्रॉम हियर राइट नाउ. नेक्स्ट इज सोते शेर को मत छेड़ो या फिर गड़े मुर्दे मत उखाड़ो. इसके लिए हम यूज करते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई. नेक्स्ट इज संतोष सबसे बड़ा धन है. Contentment is more than a kingdom. Contentment is more than a kingdom. Contentment means संतोष. Next is भाग्य ने मारा दुनिया ने मारा. The whole world will beat the person whom fortune buffets. The whole world will beat the person whom fortune buffets. डर और प्रेम कभी भी एक जगह नहीं रहते. Dread and affection never exist together. Dread and affection never exist together. Dread means fear. मुझे सोचने से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में. I dread to think what people would say about it. I dread to think what people would say about it. Next is क्या तुम्हें पानी में जाने से डर लगता है. Do you dread going in the water? Do you dread going in the water? Dread means extreme fear. Next is मरता क्या न करता. A desperate person does all things. A desperate person does all things. ये एक कहावत है. Next is नेकी और पूछ पूछ. A good deed needs no permission. A good deed needs no permission. Next is अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मम्मी मुझ पर गुस्सा होंगी या फिर बिगड़ेंगी. इफ़ आई गो विद यू माई मदर विल लूज हर टेम्पर एट मी. इफ़ आई गो विद यू माई मदर विल लूज हर टेम्पर एट मी. नेक्स्ट इज तुम्हें बच्चों के सामने अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए. यू मस्ट ट्राई टू कीप योर टेम्पर इन फ्रंट ऑफ द किड्स. यू मस्ट ट्राई टू कीप योर टेम्पर इन फ्रंट ऑफ द किड्स. नेक्स्ट इज उसकी बाईं आंख में भेंगापन है. She has got a squint in her left eye. She has got a squint in her left eye. Squint means भेंगापन. Okay. Next is मेरे दांत या फिर कान में दर्द थोड़ी देर में आता है फिर चला जाता है. The pain in my tooth or ear comes and goes. The pain in my tooth or ear comes and goes. Next is पैसा तो ऐसे ही आता और जाता रहेगा. Money will come and go just like that. Money will come and go just like that. Just like that means ऐसे ही. Next is क्या तुमने मेरे पर्स में से कुछ पैसे निकाले. Did you take any money out of my purse? Did you take any money out of my purse? Next is महंगा रोई एक बार सस्ता रोई बार बार. The cheap buyer takes the bad meat.
या फिर नेटिव स्पीकर बोलते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मेरी आवाज़ बैठ गई है, माई वॉइस हैज़ बिकम होर्स और माई वॉइस हैज़ गॉट होर्स, तो बिकम और गॉट होर्स। अपने चश्मे को नाक पर मत टिकाओ, डोंट वेयर योर ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स ऑन नोज ब्रिज, और डोंट रेस्ट योर ग्लासेस ऑन नोज ब्रिज, बोथ आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कुछ कर रही हूँ, डोंट यू सी आई एम डूइंग समथिंग, डोंट यू सी आई एम डूइंग समथिंग। Thanks a lot for watching and do like, share and subscribe. Have a good day.